Good morning, dear students. So, in today's lecture, we are going to start our last chapter of ecosystem ecology. The chapter is dealing with environmental issues and its correctiveness, environmental issues and their remedies. So, dear students, in last three chapters, we have observed that enormous amount of biodiversity has been gifted by nature, the Almighty, you can say. Variety of the interactions are happening every moment with the living entities and their surrounding environment. All the living entities are also interacting with each other. They are forming a livable ecosystem. But being human, what we have done, it was our duty to protect this environment, this entire ecosystems and all this. We have damaged them so badly. So dear students, in this chapter, we are going to discuss those types of the impacts created by the human being, as well as some of the positive impacts right now happening surrounding to us. First of all, we will be discussing about environmental pollution. So what is pollution? So dear students, according to the definition given over here, pollution is any undesirable change in physical, chemical, or biological characteristics of air, land, water, or soil. Undesirable change, which is not desirable at any cost. Okay, then also it is happening. And what are the means of the pollution? Physical changes, chemical changes, or biological changes of all the resources like air, water, and soil, land. Okay. So these agents which are changing the surrounding environment and causing the pollution, these agents are known as pollutants. Okay, so agents that cause pollution, okay, those are pollutants. Human population explosion increases demand for food, water, home, electricity, automobiles, etc. And it obviously leads to pollution. Day by day, we know that our human population is increasing. And obviously, because of that, our requirements are also being very high. It is also increasing. So obviously, there is increasing demand of the food, water, home, electricity, automobiles, and some other resources as well. And for completing all this demand of the human being, we are actually increasing the pollution on this planet. So the government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to control environmental pollution and protect and improve the quality of our environment. So dear students, ये एक neat question है. Okay. The legislation, or you can say the rule which has been passed by government of India in 1986, the title of the act is Environment Protection Act 1986. And what is the objective of this act? Okay, ये सारे neat question है. Title of the act, year of the act, passing authority, and the objective of the act. तो objective क्या है इस act का? To control environmental pollution and protect and improve the quality of the environment. Okay, this is the main objective of this act. So in detail, we are going to discuss about air pollution and its control. Now, first of all, going into the detail about causes of the air pollution. Okay, what are the means of the air pollution, you can say? So particulate and gaseous air pollutants from smokestacks,
of thermal power plants, smelters, etc. So that is very much clear that some industries, okay, which are having chimneys and all this, okay, all those industries, the thermal power plants you are observing here, okay, as well as the smelters, okay, where the metals are going to be melted down, okay, these smelters are also oozing out the particulate matter in the air. Pollutants from the automobiles as well, okay, that is one of the biggest challenge in the metro cities, okay. So these are being the major source of the air pollution, okay. Industries, particularly the smokestacks of the thermal power plants, smelters, and some other industry chimneys, and as well as the automobile pollution. According to CPCB, that is Central Pollution Control Board, that is the authority of the government of India, CPCB, that is Central Pollution Control Board, the particulate size of less than 2.5 micrometer in diameter, that is known as PM 2.5, causes greatest harm to human health. Now it is very important, dear students, ये भी एक neat question है, okay. CPCB, the full form, Central Pollution Control Board, that is one of the question, as well as the PM 2.5, particulate matter, okay. PM stands for particulate matter. तो अभी जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया, अभी डिस्कस किया, particulate इसका मतलब क्या होता है? The suspended particles which are present in the air, that is known as particulate, okay, having the size less than 2.5 micrometer. अब 2.5 माइक्रोमीटर से स्मॉल साइज के ये पर्टिकुलर मैटर हैं, लेकिन सस्पेंडेड है, दे आर नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व्ड. तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, ओके, दे आर ऑब्वियसली प्रेजेंट सस्पेंडेड इन द एयर, एंड by inhalation process they can get entry into our body system, and because of their small size they are not going to be sedimented in the air, okay, they will be just passively floating in the air. Okay, so they will remain in the air constantly. Now, harmful effects of the air pollution. So particulates cause respiratory problems because we are going to inhale them along with the gaseous exchange process, and they are going to be invaded in our lungs, our entire respiratory system. Okay, so obviously they are going to create problems in the respiratory system. It's irritation, inflammation, and damage to the lungs, and many a times it is going to cause premature deaths. Okay, तो ये आपकी जो lungs की condition हो सकती है, comparison between a relatively healthier lung, that is left hand side, to that of the lung of the person that is on the right hand side staying in Delhi. अब देखो, आप दिल्ली में अगर कोई person, if the resident of the Delhi is there, तो आप उसके lungs की हालत देखिए, और एक normal किसी village या किसी small town में रहने वाले person की आपके lungs की ये condition आप देख सकते हैं. Okay, so you can see over here the lungs are having good quantity of the particulate matter deposited on it. Okay. Reduction in growth and yield of crops and premature death of plants. Okay, तो ये भी आप देख सकते हैं, progression of the ozone damage on the watermelon foliage. अब ये watermelon के leaves की condition आप देखिए, ozone damage के साथ इसको correlate किया गया है. लेकिन वैसे भी अगर pollution increase हो रहा है, तो obviously उसकी वजह से भी crops जो है उनका भी जो gaseous exchange होना चाहिए during the process of the photosynthesis and all this, तो ये भी ठीक से नहीं होने वाला है, and because of that the plants are going to be damaged. Now, control of air pollution. How we can control this pollution? So separate or filter out particulate matters before releasing the harmless gases into the atmosphere. Separate or filter out particulate matters
बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये कहाँ से करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली we know that industries are actually oozing out this poisonous or dangerous gases to the our environment. Okay, so उससे पहले before releasing this harmful gases, okay, you have to filter out, okay, you have to separate out this harmful gases from the this particular gaseous release of the industry. Use of lead free petrol or diesel. Okay, lead free petrol or diesel should be used. Okay, that is one such method. यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ओके, तो ये भी ऑटोमोबाइल में यूज होने वाला एक प्रोविजन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी चैप्टर में, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ओके, यहीं पे इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स। ओके, तो ओल्ड व्हीकल्स जो बहुत सालों से लोग चलाते आ रहे हैं, ओके, तो ऑब्वियसली उसमें भी इंजन की जो कैपेसिटी है वो डे बाय डे डिटोरियोरेट होती रहती है, और बिकॉज ऑफ दैट इंजन की कैपेसिटी अगर ठीक नहीं है तो बर्निंग ऑफ द दिस पेट्रोल एंड डीजल इज नॉट गोइंग टू बी डन प्रॉपरली। ओके, मतलब आपका जो व्हीकल है वो पार्शियल बर्निंग कर रहा है, पार्शियल कंबशन कर रहा है आपके पेट्रोल और डीजल का। सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल कंबशन ऑफ दिस पेट्रोलियम it is going to increase the pollution, okay, air pollution. यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। एक तो आपको कौन सा पेट्रोल डीजल यूज करना चाहिए? तो कंप्लीटली लीड फ्री यूज करना चाहिए, और दूसरा आप लो सल्फर क्वांटिटी वाला पेट्रोल और डीजल आपको यूज करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ द पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बने होने चाहिए particularly for vehicles and you can say also some industries. Okay, pollution के लेवल कितने अलाउड किए गए हैं वो वहाँ पे फिक्स किया होना चाहिए थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एंड इफ somebody is releasing more than that, okay, then there should be a provision of the punishment. Use of compressed natural gas. Okay, nowadays we are very much aware about all this. Okay, CNG, that is compressed natural gas. So ये कुछ provisions हैं by which you can control the air pollution, और उसके बारे में one by one हम discuss करने जा रहे हैं dear students. So first provision, that is for automobiles, that is catalytic converters. Okay, so the device, what is catalytic converters dear student, इसके बारे में नीट में भी पूछा गया है बहुत बार, एज वेल एज आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस चैप्टर में से यहाँ से कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है, सो प्रिपेयर इट वेरी वेल। द डिवाइस टू रिड्यूस एमिशन ऑफ द पॉइजनस गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स। ओके, तो व्हीकल में से जो पॉइजनस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए व्हीकल का जो नोजल है, ओके, फॉर द एमिशन, उसके पहले ये कैटालिटिक कन्वर्टर ऑन द वे यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, इट हैज प्रेशियस मेटल्स लाइक platinum, palladium and rhodium as catalyst, catalytic, that means there is some reaction going to be happen over here. ओके, तो इसीलिए इसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोला गया है, और यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट कौन काम कर रहा है? केमिकल कैटालिस्ट यहाँ पे है प्लेटिनम, पैलेडियम, rhodium. Now this is neat question. This converts unburnt hydrocarbons, मतलब जिसका कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, ऐसे जो भी हाइड्रोकार्बन्स है उसको ये कन्वर्ट करते हैं। मतलब इंजन, देखिए आप यहाँ पे इंजन है, इंजन में जिसका कंबशन नहीं हुआ है ऐसा हाइड्रोकार्बन ऑब्वियसली ये नोजल के थ्रू एमिट होने के लिए बाहर निकलने वाला है, राइट। लेकिन ऑन द वे अगर आपने कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे प्लेस कर दिया है, इसको यहाँ पे फिट कर दिया गया है, तो क्या करेगा ये कैटालिटिक कन्वर्टर? पर्टिकुलरली इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या करेंगे? तो ये अनबर्न कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, मतलब जो पेट्रोलियम कंपाउंड्स हैं, उसको वो कंबस्ट करके उसको CO2 और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट योर पॉल्यूशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। दूसरा, कार्बन मोनोक्साइड अगर उसमें है तो फिर उसको भी ये कन्वर्ट करके देते हैं CO2 में।
कंपेरेटिवली CO2 इज लेस टॉक्सिक देन द कार्बन मोनोक्साइड। अगर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड है तो उसको भी ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके देते हैं। So motor vehicles having catalytic converters should be should use unleaded petrol because lead, that is PB, okay, plumbum, inactivates the catalyst, that is platinum, palladium and rhodium. तो ये एक रीजन एसर्शन में पूछा जाता है that the vehicles having provision of the catalytic converters should use अनलेडेड पेट्रोल। तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर में जो मेटल्स यूज होते हैं, दैट इज प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, दे आर गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द लीड इन द पेट्रोल एंड डीजल। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट कैटालिटिक कन्वर्टर इज गोइंग टू बी इनएक्टिवेटेड। तो ऐसा नहीं होने देना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ द व्हीकल्स हैविंग द प्रोविजन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल। तो यहाँ पे आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो कैटालिटिक कन्वर्टर आपके लिए ऐसे टॉक्सिक गैसेस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करके दे रहा है, और अगर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर आपके व्हीकल में है तो फिर आपको ऑब्वियसली अनलीडेड पेट्रोल यूज करना पड़ेगा, राइट? You can see over here the actual photograph of the catalytic converter, and this is the diagrammatic representation. यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-way catalyst, यहाँ पे 3 यहाँ पे शीट्स दिए गए हैं, ओके, HC, CO एंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड्स अगर यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन है कैटालिटिक कन्वर्टर इन द व्हीकल्स। सेकंड एक प्रोविजन है, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ द CNG। क्योंकि यहाँ पे हम CNG के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, राइट नाउ many of the vehicles we are running on the provision of the CNG. So what is CNG? It is better and cheaper than petrol and diesel. Okay, तो अगर आप पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं तो उसकी जो एक एवरेज है उससे ज्यादा ही एवरेज आपको CNG में मिलता है। एक तो ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, इट बर्न्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ओके, जैसे पेट्रोल और डीजल में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे CNG में ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, इट कैन नॉट बी साइफन्ड ऑफ बाय थीव्स एंड इट कैन नॉट बी एडल्ट्रेटेड एज वेल। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन है, क्योंकि जो चोरी चपाटी करने वाले लोग हैं वो टैंकर्स में से इवन आपके जो व्हीकल के टैंक है उसमें से CNG को, सॉरी पेट्रोल को पर्टिकुलरली निकाल के उसकी चोरी कर सकते हैं। लेकिन CNG की इस तरह से रॉबरी या चोरी करना पॉसिबल नहीं है। एज वेल एज पेट्रोल में भी बहुत बार, पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ऐसा ऑब्जर्व किया गया है दैट इट कैन बी एडल्ट्रेटेड। ओके, उसमें मिक्सिंग हो सकता है, एडल्ट्रेशन मतलब अनऑथेंटिक मिक्सिंग, राइट? लेकिन CNG में ऐसा एडल्ट्रेशन करना, मिक्सिंग करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक उसका एडवांटेज है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट CNG एडवांटेजेस। लेकिन देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द CNG। क्या है CNG का मेन प्रॉब्लम? द डिफिकल्टी ऑफ लेइंग डाउन पाइपलाइंस टू डिलीवर CNG थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स और पंप्स। तो ऑब्वियसली आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, बिकॉज आपका टेक्स्ट बुक जो है वो यू कैन से 14-15 years ओल्ड प्रिंट वर्जन है, लेकिन द अपडेटेड सिनारियो इज कि अभी CNG के लिए प्रोविजंस बहुत अच्छे बन चुके हैं। ओके, उसका ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज उसके लिए पाइपलाइन वगैरह ये बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक स्टिल there is some limitation over distribution of the CNG.
दूसरा एक प्रोविजन जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अगर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा गया है तो बी रेडी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये क्वेश्चन हो सकता है। सो व्हाट इज इट? इट इज द डिवाइस टू रिमूव पर्टिकुलेट मैटर। जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर भी एक ऐसा डिवाइस है कि जो पर्टिकुलेट मैटर को नहीं, लेकिन गैसियस जो कंपाउंड्स हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स, उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और वहां से एमिशन कुछ ऐसे पर्टिकुलेट मैटर का हो रहा है विच इज नॉट कंप्लीटली बर्न्ड एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी मिक्स्ड विद द एयर प्रॉपरली, तो ऐसे जो पर्टिकुलेट मैटर्स है उसको रिमूव करने के लिए, उसको फिल्टर आउट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम यूज करते हैं। It can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant. Okay, 99%. Okay, तो आप समझ सकते हैं इसकी efficiency क्या है। 99% particulate matter it can be removed, which is present in the exhaust of the thermal power plant. The electrons released from electrode wires at several thousand volts attached to dust particles, giving a negative charge. The collecting plates attract the charged dust particles. अब ये स्टेटमेंट समझिए और उसके पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, दिस इज अनदर डिवाइस दैट इज स्क्रबर। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। अब देखो यहाँ से डर्टी एयर, मतलब जो थर्मल पावर स्टेशन से एमिशन में से आ रही है डर्टी एयर जिसमें पर्टिकुलेट मैटर्स हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, एक देख सकते हैं डिस्चार्ज कोरोना। ओके, ये कोरोना वायरस नहीं है, इट इज कोरोना क्रिएटिंग अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे आपके जो डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस डर्टी एयर आर गोइंग टू बी चार्ज्ड। ओके, सेवरल थाउजेंड वॉल्ट्स का करंट यहाँ से पास ऑन किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन प्लेट्स आर देयर। ओके, फिक्स किए गए हैं कलेक्शन प्लेट्स। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स पास ऑन होके कलेक्शन प्लेट्स के पास आते हैं, they are going to be sedimented over, you can say they are going to be precipitated over here, और particles यहाँ पे रह जाएंगे because of the charge provided by the electrons। लेकिन आपकी जो air है, air is obviously inert material, okay, it is going to be passed on from this प्लेट्स। ओके, तो वो वहां से एमिट आउट हो सकती है। उसको आप थोड़ा लाइव पिक्चराइजेशन में देखिए। यहाँ एक बार वापस से एनिमेशन जब शुरू होगा तब इसको ठीक से समझिए यहाँ से। ओके, here you will be having air, dirty air, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स है उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया, यहाँ पे प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे अटैच हो जाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। और एयर जो है विच इज क्लीन नाउ, इट इज गोइंग टू बी एमिटेड आउट। ओके, सो एक अच्छा प्रोविजन है जिसकी एफिशिएंसी भी 99% है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन ये इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस जो है वो कम कर रहे हैं। The velocity of the air between the plates must be low enough to allow the dust to fall। अब यहाँ पे जो दोनों पोल्स के बीच में, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो एयर की वेलोसिटी, मतलब स्पीड जो है, ओके, वो बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी मेंटेन्ड, ओके, इट शुड बी मैनेज्ड इन सच अ वे, it should be balanced in such a way so that the particles can have a good interaction time with this plates। okay, दूसरा एक डिवाइस है दैट इज स्क्रबर। ओके, दिस वन। सो स्क्रबर का प्रोविजन क्या है? इट रिमूव्स गैसेस लाइक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसको रिमूव करने के लिए आप स्क्रबर यूज कर सकते हैं। इन दिस the exhaust is passed through a spray of water or lime। अब आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डर्टी एयर जो है इसको हमने पास ऑन किया है। ये फोर्सफुली डर्टी एयर को हम ऊपर पास ऑन कर रहे हैं और ऑन द वे देयर इज अ स्प्रे ऑफ वाटर एंड लाइम मिक्सचर। ओके, लाइम और वाटर का
मिक्सचर है यहाँ पे, और वो उसके ऊपर एयर के ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाइम वाटर जो है ओके वो सल्फर को प्रेसिपिटेट कर देता है। डर्टी एयर को हम पास ऑन कर रहे हैं जिसमें सल्फर ऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड्स भी है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर से स्प्रे हो रहा है लाइम वाटर का, लाइम वाटर क्या कर रहा है, जो डर्टी एयर है उसमें SO2 जो है, सल्फर के ऑक्साइड्स जो है उसको वो प्रेसिपिटेट आउट कर देता है, और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे की ओर, और बाकी रहा जो आपका प्योर एयर है, इट इज गोइंग टू बी एग्जॉस्ट आउट फ्रॉम दिस अपर चैनल। तो ये स्क्रबर का रोल है, ये भी इंडस्ट्री में यूज होता है। वेरी स्मॉल पर्टिकुलेट्स आर नॉट रिमूव्ड बाय दिस प्रेसिपिटेटर। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसमें से बहुत स्मॉल साइज के जो पर्टिकुलेट मैटर है वो एलिमिनेट नहीं हो सकते, ये उसकी लिमिटेशन है। दूसरा एक प्रोविजन जो है ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन दैट नॉइज पॉल्यूशन। सो नॉइज की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं, इज अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, ओके, जो हमें प्लीज नहीं करता है, ऐसी कोई साउंड दैट इज नॉइज। इन इंडिया एक और प्रोविजन के बारे में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे है, तो ये भी नीट क्वेश्चन है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 was amended in 1987 to include noise as an air pollutant। अब समझिए स्टेटमेंट में क्या कहना चाहते हैं। 1981 में एक रूल पहले से था, एक एक्ट पहले से था, दैट इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। 1981 में ये एक्ट है वो इंडिया में मतलब लागू हो चुका था, लेकिन उसमें फिर 1987 में एक अमेंडमेंट कर दिया गया। अमेंडमेंट में ये हुआ कि नॉइस को भी एयर पोल्यूशन के एक टाइप में ऐड कर दिया गया, और उसको कैसे डील करना है उसके प्रोविजंस भी उस एक्ट में डाल दिए गए। ओके, सो ये एक्ट 1981 से था एयर पोल्यूशन के लिए, लेकिन उसमें 1987 में नॉइस को भी ऐड किया गया एज वन सच एयर पोल्यूटेंट। नाउ सोर्सेस ऑफ द नॉइस पोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, okay, well known, we know about this. Loudspeakers, correct. Crackers, industries, etc. Okay, these are the sites or the provisions of the noise pollution. Now what is the effect or impact of the noise pollution? What are the harmful effects of the noise on human health? तो क्या क्या हो सकता है? So because of the noise pollution, it causes psychological and physiological disorders. Okay, दो anatomical नहीं हो सकते इसकी वजह से, लेकिन psychological और physiological disorder तो noise की वजह से हो सकते हैं। Sound level above, now this is neat question, above 150 decibel, which is generated by takeoff of a jet plane or rocket, may damage ईयर ड्रम्स। ओके, तो ये हमें पता है ईयर ड्रम अगर वाइब्रेट होता है तभी जाके साउंड वाइब्रेशंस की वजह से हमारे जो ऑडिटरी नर्व्स है ओके दे आर गोइंग टू बी चैनलाइज सम वर्ड्स। ओके, तो 150 डेसिबल से ज्यादा अगर कोई साउंड है दैट इज कंसीडर्ड एज नॉइज। Chronic exposure to relatively lower noise may damage hearing abilities of human। अब ये भी नहीं है कि 150 डेसिबल से ज्यादा वाला नॉइज अगर आपके कांटेक्ट में आ रहा है यू कैन से इनफ्रिक्वेंटली, लेकिन अगर फ्रिक्वेंटली आप ऐसी जगह पे हैं वेयर देयर इज रिलेटिवली लोअर नॉइज बट देयर इज कांस्टेंट क्रॉनिक एक्सपोजर, जैसे कि आपका खुद का शॉप है in market where hundreds or thousands of the vehicles are passing on during entire day, अब उनका जो हॉर्न है, इंजन की वॉइस नॉइज जो है, राइट, इट इज ऑब्वियसली इतना हमें लगता नहीं है उस टाइम पे तो, लेकिन कलेक्टिवली it is going to damage your eardrums because you are constantly living in such environment which is polluted by noise. Okay,
So ultimately it is obviously going to damage your hearing ability or capacity in old age. Okay, बहुत बार तो उसके पहले भी ये हो सकता है, in the middle age also, as well as बाकी जो physiological impact इसके हो रहे हैं health के ऊपर, that is sleeplessness, okay, नींद नहीं आना, increased heartbeat, blood pressure बढ़ाता है, noise, breathing बढ़ाता है, and it is also one of the causative reason of the stress. Okay. Now control of the noise pollution, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? यूज ऑफ साउंड एब्सॉर्बेंट मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज, तो जहां से ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है वहां पे साउंड एब्सॉर्बेंट लगाने चाहिए. जैसे हमने ऑब्जर्व किया होगा थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में ऐसे साउंड एब्सॉर्बेंट्स वॉल पे और सीलिंग के ऊपर लगाए होते हैं, राइट. डिलिमिटेशन ऑफ द हॉर्न फ्री जोन्स अराउंड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, तो जहाँ पे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे हॉर्न फ्री जोन्स का प्रोविजन होना चाहिए, मतलब जहाँ पे हॉर्न बजाना एक प्रोहिबिटरी कॉज होना चाहिए. परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ द क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, ओके, लाउड स्पीकर्स और क्रैकर्स में भी ये प्रोविजन होना चाहिए कि उसकी एक साउंड लेवल जो है वो फिक्स करनी चाहिए थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ओके. और उसको क्रॉस करके आप कोई ऐसे क्रैकर्स अपने फन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरह से लाउड स्पीकर्स आप बजा नहीं सकते, ऐसे प्रोविजन होने चाहिए और उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी होनी चाहिए. डिलिमिट द टाइमिंग्स ऑफ यूजिंग लाउड स्पीकर्स, ओके. तो लाउड स्पीकर्स जो हैं, ओके, उसके लिए भी एक टाइमिंग्स होने चाहिए, चाहे फिर वो रिलीजियस पर्पस से है या किसी और पॉलिटिकल पर्पस से, किसी भी पर्पस से हो, लेकिन लाउड स्पीकर बजाने के लिए एक टाइमिंग का भी प्रोविजन होना चाहिए. नाउ लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया टू कंट्रोल वेहिकुलर पॉल्यूशन, के इसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. फाइन. सो एक तो ऑटो फ्यूल पॉलिसी टू कट डाउन वेहिकुलर पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज, के तो एक ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी एक बनाई गई है. उसमें नॉर्म्स जो है, यूरो 2 नॉर्म्स control sulfur content at 350 parts per million in diesel and 150 parts per million in petrol, okay, euro 2 norms के हिसाब से. level of aromatic hydrocarbon is to be at 42% of the fuel. तो सल्फर जो है हमारे पेट्रोलियम कंटेंट में, पर्टिकुलरली पेट्रोल में ही 350 पार्ट्स पर मिलियन इन डीजल और 150 पार्ट्स पर मिलियन इन पेट्रोल, दैट इज अलाउड, ओके. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो प्रेजेंस है फ्यूल में, ओके, वो 42% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इन फ्यूचर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो रिड्यूस सल्फर टू 50 parts per million in petrol and diesel and bring down to the level to 35% about aromatic hydrocarbons, okay. तो 50 parts per million तक हमें इसको लेके जाना है सल्फर कंटेंट को, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस है उसको 35% तक हमें लेके जाना है. दैट इज अवर फ्यूचर गोल. अपग्रेड व्हीकल इंजीन्स, ओके, तो ये भी एक प्रोविजन है, ओके. व्हीकुलर इंजीन्स हमारे जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन, जैसे BS 12 स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसे 6 तक अभी है. हमें पता है कि नए जो व्हीकल अभी आ रहे हैं दैट इज BS 6 स्टैंडर्ड, तो BS 6 स्टैंडर्ड के व्हीकल्स अभी हम यूज कर रहे हैं, ओके. तो इंजीन्स अपग्रेड होने चाहिए और उस इंजीन, अपग्रेडेड इंजीन के जो व्हीकल है उसको ही परमिशन होनी चाहिए. दैट शुड बी आल्सो वन प्रोविजन ऑफ द एज ऑफ द व्हीकल, ओके. अभी इंडियन गवर्नमेंट हैज पास्ड लेजिस्लेशन, यू कैन यूज योर व्हीकल मैक्सिमम अप टू 15 ईयर्स, ओके. उसके बाद आप उस व्हीकल को यूज नहीं कर सकते हैं, ओके. So dear students, today we have discussed about particularly
air pollution. Okay. And in the next lecture, we will discussing about water pollution and its control. So I hope you have enjoyed to this session. If you are having any doubt, any queries, questions, you can call me, WhatsApp me. Okay. Have a nice day and stay safe.